So today topic is very important, right? Why this is important? Because many of the people, काफी लोग इससे परेशान और हैरान है. Many of the patients are helpless because of the this headache. It is not a simple headache because the most common headache is the tension headache, and migraine comes the second most type of headache. Tension headache can be relieved with the minimum dose of some painkiller, but patient cannot even get better with the painkiller. They have to take the medicine like a migraine or the Nextdoor. Even I have seen the few patients which become resistant to even the Nextdoor. And if they took the Nextdoor frequently, then the side effect was there. Definitely the side effect was there, and it will only subside the episode of the headache, but not cure the migraine. Now the homeopathy has a good scope. After seeing the large number of cases, I have conclude or come to the conclusion that the migraine is curable in the homeopathic medicine if the approach is correct. So such a maddening headache, because if the patient suffer with such a type of headache where there is a recurrence occurs because of the some triggering factor, and that factor come again and again, he may goes into the complication like a status migrainosus, where there is a persistent headache for the long time, or patient goes into the that much state of mind where there was a suicidal thought come up, because patient don't get the desirable result or desirable effect. There was no effect as far as allopathy is concerned, so he goes into the that much extent कि वो सुसाइड करने का भी सोचता है कि ये अभी हेडेक ठीक नहीं होगा. So that much intense this headache is, and this is one of the most it produces the disability, one of the most prevalent disease as far as the epidemiology is concerned, and it causes the disability. Because of this headache, most of the people who are working, they have to take the leave from their work. Their performance is getting hampered. मतलब एक सुबह शुरू हो गया तो 2 दिन, किसी का एक दिन, तो पूरा he has or she has to take the rest completely. Even the slight noise, even the slight disturbances, interruption is intolerable for such a patient. So this is such a terrible type of disease this migraine is. And we are now going to see how to manage such a type of condition so that we can able to give relief to the thousands of people, thousands of patients. Because most of the time patient consulted to the neurologist, but neurologist what they do, they prescribe the Nextdoor, और वो बताते हैं कि ये लाइफस्टाइल डिसीज है, ये ठीक होने वाला नहीं है. Even after changing the lifestyle, might be the frequency may change to reduce to some extent, but not completely cure, because there are the factor where the patient has to face that factor or triggering factor, like a lack of sleep, like a exertion, like a exposure to sun heat, like a strong odor, like a strong noise or loud noise, like that. So ये patient avoid नहीं कर सकता है ना completely. So in how जब patient expose होता है तो वो he started with the episode आराम हो जाता है with the tablet, with allopathic tablet, but the recurrency never goes. In spite, if he is taking that tablet frequently, then drug induced headache started. Then the frequency of headache may increase. It is given in the textbook that frequent uses of that tablet or painkiller may induce the more frequent headache, right? And my PhD, the most important is my PhD topic is this: management of migraine through the homeopathic constitutional medicine. And I'm working very, having taking very high efforts to prove that कि
homeopathic constitutional medicine play a very important role in curing the disease, in the cure of disease, not just reducing the frequency or intensity. Important is to reduce, to cure the disease. मतलब वो जो एक्सपोजर है, वो जो ट्रिगरिंग फैक्टर है, पेशेंट वो धूप में भी गया, वो एक्सर्शन भी किया, लाउड नॉइज भी हुआ, सनलाइट का एक्सपोजर हुआ, या टेंशन भी आया, तो भी सर दर्द नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स द वही डेवलप, वही द सेंसिटिविटी हम उसमें मैनेज करते हैं या रिलीव करते हैं. सो दिस इज द 31 years फीमेल हु इज बी सिविल इंजीनियर है. शी इज अ हाउसवाइफ, married since 7 years, and husband is CA. She having the 7 years daughter. So she started treatment on the month of, I think, May. Right? The patient come up with this presentation. Now this presentation or LSMC is very, very important in order to differentiate the diagnosis. Because most of the people, या कुछ few peoples come up with कि मुझे migraine है करके. But as a doctor, don't rely on it. Patient diagnosis. If most of the peoples have the neurologist file, CT scan होता है, वो normal WNL दिखता है within normal limit, उसको नेक्स्टडॉम शुरू रहता है और न्यूरोलॉजिस्ट डायग्नोस करता है माइग्रेन. बट फ्यू पीपल, और इवन अभी मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे हेडेक के केसेस आते हैं जो ऑलरेडी माइग्रेन नहीं है, पे हम करते हैं, हमको उसको डायग्नोस करना पड़ता है. पर टू डायग्नोस द माइग्रेन इज नॉट अ इजी टास्क. देयर इज अ some classical presentation or symptomatology according to the American Psychiatry or Migraine Society. we will see when there was a differential diagnosis. So patient come up with the severe, there was an episode. Now in the month of May, that is the summer में day हर वीक होता है. नहीं तो ऐसे अगर ऑफ सीजन जैसे विंटर है, रेनी है, तो 15 दिन में एक बार हो सकता है. And this headache that patient suffers since the 14 years of age. See how long she's suffering with headache. और कितने सालों से वो मेडिसिन ले रही है, एलोपैथिक मेडिसिन. And the complaints increase intensity and frequency after the marriage. After marriage उसका complaints increase हुआ. That means there is a something. This is the important clue for you to understand the problem definition. कि पेशेंट का मैरिज के बाद तकलीफ बढ़ी है. इट इज नॉट कि कब स्टार्ट हुआ है, पर frequency and intensity was significantly increased after marriage. That means there was a problem. So we have to assess the life before marriage and life after marriage. Keep in mind. So there was a throbbing and hammering type of pain. कोई ऐसे मार रहा है ऐसे हथौड़ा. With there was nausea, और उल्टी की कोशिश करती है, तो उल्टी भी हो जाती है कभी. So because of that, how she express, I am written here in the patient language so that you can understand the depth of that symptom. तो patient क्या बोलते हैं, तड़पते रहती हूँ, तड़पना with the pain, कोई बात ना करे और शांत चाहिए. Complaints aggravated after lying down, aggravation in summer, sun heat after marriage, lack of sleep, light and noise. With this headache, patient also having the severe dysmenorrhea. Though menses is regular, but the flow is scanty, but clotted and offensive. With there was a nausea, frequent urging for stool with during menstruation, and here also the pain is severe so much कि यहाँ पे भी patient कैसे बोल रही है, तड़पते रहती. This shows the intensity of pain. The pain become intolerable. And the first day there was a severe abdominal pain, can't even able to stand. मतलब जब मेंस्ट्रुएशन आते हैं तो 2 दिन वो बेड पे ही रहती है. बाथरूम जाना, टॉयलेट बाथरूम जाना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है. दर्द इतना खतरनाक, कुछ काम ही नहीं कर सकती. पेन किलर टैबलेट लेना ही पड़ता है. अगर पेन किलर टैबलेट नहीं लिए तो वोमिटिंग ज्यादा होती है, एब्डोमिनल पेन बढ़ता है, एंड द पेशेंट बिकम स्ट्रिकिंग विद पेन, चिल्लाती है दर्द के कारण. पेशेंट बोलती है सहन शक्ति कम है, मैं पैर दर्द में पैर पटकती हूँ. The physical general, this is the LSMC, location sensation modality. Patient having this two complaint. Stool satisfactory,
with the lemon water. After lemon water only, perspiration profuse and offensive, menstruation पहले ही चिप कंप्लेंट में, ल्यूकोरिया इज ऑफेंसिव, एबॉर्शन की हिस्ट्री नहीं है, एपेटाइट नॉर्मल है, थर्स्टी है ना, हंगर इंटॉलरेंस है, हंगर इंटॉलरेंस इज वेरी मार्क 3+, which causes the instant headache. If she goes without the food, the headache started. Craving for fried food, chocolate, aversion to cheese and butter. Whatever the important points you feel, you can write down so that we can discuss the totality and respective remedies. बराबर है? You can feel the remedy. जब ये इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूं, जब लाइस्पेस आएंगे, यू कैन फील, यू मस्ट इमर्ज द रेमेडी. मतलब लाइस्पेस ऐसी है कि वो रेमेडी इमर्ज होनी चाहिए, ऐसी है कि वो रेमेडी इमर्ज होंगी. इफ यू कीप द अटेंशन, पे द अटेंशन. स्लीप इज साउंड, बट सुबह उठना नहीं होता. सेंसिटिविटी इन जनरल, सन इंटॉलरेंस है, causes irritability and severe headache. नॉइज, सेंसिटिव टू नॉइज है, इवन इट कॉजेज द हेडेक. लाइट से भी सेंसिटिव है. टाइट क्लॉथिंग टॉलरेट है क्योंकि जीन्स वगैरह यूज करती. स्ट्रॉन्ग ऑर्डर नॉट स्पेसिफिक. थर्मली द पेशेंट इज हॉट, सेंसिटिव टू वार्मथ, इवन कांट टॉलरेट द हीट एंड वांट्स मोस्ट ऑफ द टाइम एसी एंड फैनिंग. कूलेंस नॉट रिक्वायर्ड. बराबर है. कवरिंग रिक्वायर, बट इन द विंटर सीजन, एक्सट्रीम ऑफ विंटर, फैनिंग चाहिए. बाथिंग ल्यूकवार्म वाटर है. सन हीट बिल्कुल नहीं चाहिए. चेंज ऑफ वेदर से कोई ऐसे परेशानी नहीं होती है. राइट. सो दिस इज द पेशेंट इज thoroughly hot, goes towards the hot. After marriage, so this is the life space of the patient. After marriage, mother-in-law used to criticize. अरे पेशेंट ने स्टार्ट किया, पेशेंट इज कम्युनिकेटिव. तो पेशेंट मैरिज के बाद कैसा, मतलब because we have already seen the complaints start after marriage, so the marriage is a sensitive point. So you can start with the how was your life, how is your life after marriage. You can ask like this. How you put the question is even important. हाँ, तो हर चीज में टोकना, हर चीज में टोकना. फील्स ऑफेंडेड, बहुत बुरा और बहुत रोती थी. quarrel with mother-in-law and even the husband. क्यों? And whenever there was a quarrel, she becomes ill. मैं बीमार पड़ जाती थी. टेंशन आता तो बीमार पड़ जाती थी, झगड़ा होता तो बीमार पड़ जाती थी, कुछ पसंद नहीं आता तो बीमार पड़ जाती थी. तो कुछ भी बोलते थे, मुझे स्ट्रेस फील होता था, बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होता. मेरे में गुस्सा बहुत है. जब मैंने पूछा कि अबाउट द एंगर, हाउ इज द एंगर, गुस्सा बहुत है, मैं रिएक्शन देती हूँ. सी, रिएक्शन टू द सिचुएशन, मतलब सिचुएशन है, पर पेशेंट कैसा रिस्पॉन्ड करता है या रिएक्ट करता है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. तो मैं रिएक्शन करती हूँ. बहुत इश्यू होते थे. एमुलेशन आफ्टर रिएक्शन, मतलब मैंने अगर बोला नहीं तो अंदर ही अंदर तकलीफ होती है. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ इंडिग्नेशंस, एंगर्स एंड ब्रूडिंग. कांस्टेंट थॉट, चिढ़ आती थी, रोती थी, शक्ल नहीं देखना, मतलब जिसने हर्ट किया ऐसे लगता था कि इसका शक्ल ही नहीं देखना. सो quarrels, एंगर एंड लेटर ऑन कि इतना गुस्सा आता है, ये तो थोड़ा सा रिलीजियस पाथ में, तो वाहेगुरु वाहेगुरु का जैसे कुछ ये है, प्रार्थना करना, मंदिर में जाना, टेम्पल में जाना, तो उससे उसको थोड़ा सा पेशेंट को रिलीफ मिलता था. एंगर, श्रीकिंग एंड शाउटिंग, गुस्से में जोर जोर से चिल्लाती थी. कि पेशेंट का जो डिस्क्रिप्शन की भी, कहीं पे भी आवाज जाती थी, मतलब घर से बाहर भी दूसरे लोगों को भी आवाज सुनाई देती थी, क्योंकि मेरा गुस्सा एकदम अनकंट्रोल्ड है, बहुत जोर से झगड़ा होता था. ऐसे सबके साथ फ्रेंडली, वैसे तो मैं सबके साथ फ्रेंडली, ऊपर किसी ने छेड़ दिया, कोई अगर अच्छी बात कर रहा है तो ठीक है, पर किसी ने अगर छेड़ दिया तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है. तो उससे एक तो रिलेशन उतने बनते नहीं है. हस्बैंड ने अगर चिल्लाया तो रोती हूँ, रात भर रोना आता है, फिर सहन नहीं होता, कुछ कर लो अपने आप को, ऐसा लगता है कि अपने आप को कुछ कर लो. So you can see the patient sensitivity, you can see the reaction of the incidents. अभी when we ask about the बचपन की, बचपन कैसे गया, बहुत गुस्सेल थी, जिद्दी थी, गुस्सा बहुत आता था, पर लाडली थी, और बहुत, मैं बहुत सेंसिटिव थी. तो शी वॉज अ सेंसिटिव गर्ल्स इन द चाइल्डहुड.
यहाँ भी ज्यादा काम हुआ तो तकलीफ शुरू हो जाती है। मतलब वहां तो काम करना ही नहीं पड़ता था क्योंकि सब मेट्स थे, बराबर है कि नहीं, घर में काम करने की जरूरत ही नहीं, और मैं लाडली थी। और यहाँ अगर काम हुआ तो तकलीफ शुरू हो जाती थी, हो जाती है या हो जाती थी। फ्रेंड सर्कल कैसे है? आस्क अबाउट द हाउ इज योर फ्रेंड सर्कल एंड हाउ वाज योर फ्रेंड सर्कल इन द चाइल्डहुड। तो वैसे तो फ्रेंडली थी, मस्ती मजाक हंसी, घूमना फिरना बहुत, बट कुछ भी बात ऐसे सहन नहीं होती थी। सो शी वॉज इजिली ऑफेंडेड। फ्रेंड्स ने कुछ कहा तो जल्दी बुरा लगता था, कुछ अगर एक्सपेक्ट करूँ और उन्होंने पूरा नहीं किया तो हर्ट होता था। स्टडी में वॉज गुड इंटेलेक्चुअल बिकॉज हैड ऑन द गोल्ड मेडल इन द 8th and 9th स्टैंडर्ड। एक छोटा भाई था, बट उससे भी सिबलिंग जिलसी थी। उसको अगर कुछ लेके दिए तो मुझे भी लगता था कि मुझे भी चाहिए कर। तो जिलेसी के बारे में और एक्सप्लोर करने के लिए पूछा तो दूसरों को देख के मुझे भी चाहिए ऐसा फील होता है। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रदर, बट किसी ने और ने भी, फ्रेंड सर्कल में भी रिलेटिव्स में भी, अगर किसी ने कुछ लिया और जो मेरे पास नहीं है तो देख के मुझे भी, मैं जिद करती थी कि मुझे भी चाहिए। और अभी भी ऐसा है, अभी भी ऐसा ही, गहने, फॉरेन ट्रिप या मटेरियल थिंग्स, घूमना, रेस्टोरेंट जाना, बराबर ये सब पसंद है। अगर रोना आता है, अगर कुछ हुआ और रोना है तो मैं अकेले में रोती हूँ, छुप के रोती हूँ। सी एक्सप्रेशन, अगर कुछ हुआ, किसी ने बोला, हर्ट हुआ, ऑफेंड हुई, तो रोती हूँ, पर छुप के रोती हूँ, किसी के सामने नहीं रोती। अभी क्यों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क द क्वेश्चन कि व्हाई दिस सो। रोना आता है पर, है ना, जिसने हर्ट किया उसके सामने नहीं, अकेले में रोएंगे। क्यों अकेले में रोते हो, यू मस्ट आस्क द क्वेश्चन। लोग देखेंगे, तो लोग नहीं देखना चाहिए, लोग फायदा ज्यादा उठाते हैं और समझेंगे ये लड़की वीक है। So she don't want to expose her weakness. She want to express she as a strong person. That's why she never used to weep in front of the people. She used to weep alone. अभी उसके पीछे रीजन, that is this is important reason she share, this is important। हाँ, अभी एक बचपन से अपने स्कूल पूछा, फैमिली पूछा, तो जैसे एडोलसेंस यंग होते हैं तो मैंने पूछा कि इज देयर वाज एनी फ्रेंड सर्कल में कि बॉयफ्रेंड इशू या स्पेशल कोई फ्रेंड बिफोर मैरिज। तो पेशेंट एक्सपो टोल्ड दैट कि शेयर दैट कि अफेयर 6-7 साल चला, लड़का पीछे पड़ गया था, मैं भी इन्वॉल्व थी, पर धीरे धीरे समझा मुझे कि यहाँ पे स्कोप नहीं है। सी सी द लैंग्वेज, सी द वे शी शेयरिंग द फीलिंग्स और इमोशंस, या हर इंटेलेक्ट या मोरल्स, ना मनी। धीरे धीरे मुझे समझा कि यहाँ स्कोप नहीं है, ना पैसा ना कुछ इतना, ना मनी ना कुछ, विदाउट मनी कुछ चलता ही नहीं है। धीरे धीरे मैं हट गई, मैंने बोला मेरे से अब ये नहीं हो पाएगा। तो वो इन्वॉल्व थी, पर उसने देखा कि यार लड़का तो, लड़की के पास कुछ पैसा नहीं है अभी। पैसा नहीं है, क्यों नहीं है, मतलब जितना उसको चाहिए, बराबर, तो पैसा नहीं, तो धीरे धीरे मैंने बैकफुट ले लिया। उसके तरफ से तो था, उसके मम्मी भी तैयार थी कि शादी होना चाहिए, पर मैंने बैकफुट ले लिया। हाँ, अभी उसके बाद उसको पूछा कि इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब नहीं की है ना, इंजीनियरिंग हो गई तो अंबुजा सीमेंट में ऑफर आया था, पर पेमेंट कितना था, 10 से 12 हजार, तो मुझे नहीं करना था इतनों से पेमेंट। और पापा ने भी बोला कि इतना काम करेंगी तो मैंने भी मान लिया। पापा बोले बैठ जा, तो मैं बैठ गई, बराबर है। सी दिस इज इम्पोर्टेंट कि पापा बोले, मतलब पेशेंट ऐसे शो कर दिए कि पापा ने बोला कि मत कर तो मैंने नहीं किया, बट सी द पेशेंट्स ओरिजिनल कोर जो है वो जिद्दी है, मतलब उसको अगर करना है वो करेंगी, उसको जो चाहिए वो लेके रहेंगी। तो यहाँ पे पेशेंट तो जिद्दी है, वो पापा पे को शो कर रही है कि पापा ने बोला, बट पेशेंट दैट टाइम वाज नॉट विलिंग टू डू दैट जॉब इन सच अ स्मॉल अमाउंट। फॉर दैट टाइम पेशेंट को वो एकदम कम सैलरी लगी।
बराबर है. ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिस्पोजिशन एंड हाउ शी एक्सप्रेस. सो अभी अभी जॉब, जब हस्बैंड तो पूछा कि अभी जॉब क्यों नहीं करते आफ्टर मैरिज. जब हस्बैंड पैसे कम देते हैं तो लगता है कि जॉब करना चाहिए, पर अभी जॉब नहीं करती. मनी का शो ऑफ ज्यादा है मेरे में. फॉरेन घूमना, गोल्ड डायमंड, ये सब शौक है. ठीक है ना, मनी का शौक. एनीवन हु इज नॉट अनम्यूट, प्लीज म्यूट योर सेल्फ. वैशाली कड़मकर एंड अंबू राजा. अनबू राजा एंड वैशाली कड़मकर, प्लीज म्यूट योर सेल्फ. हाँ, उसका पेशेंट का कैसे शो ऑफ करना ज्यादा पसंद है. फॉरेन घूमना, गोल्ड खरीदना, डायमंड खरीदना, सब उसका शौक. और दूसरे से ज्यादा. हाँ, जो मेरे कजिन है ना, उनसे तो मुझे ऊपर चाहिए. उनसे तो ज्यादा चाहिए, उनसे कम नहीं. ड्रेस लिया ऐसा, ड्रेस लिया ऐसा, मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझे भी चाहिए. अगर उन्होंने कोई ऐसे पर्टिकुलर फैशन का, पर्टिकुलर ट्रेंड का अगर कुछ चीजें खरीदी है, फॉर एग्जाम्पल ड्रेस खरीदा है और फंक्शन में आई, तो मैं भी हस्बैंड को जीत करूंगी. मैं, मुझे भी ऐसा ही चाहिए, इससे बड़ा चाहिए, इससे अच्छा चाहिए. तो दूसरों से कम तो मुझे दिखना ही नहीं है, उससे ज्यादा ही दिखना है. अगर आप नहीं ले पाए, अगर बाय चांस अगर आप उस चीज को नहीं ले पाए, तो क्या होता है, तो बहुत चिड़चिड़ होती है. पहले तो बहुत झगड़े होते थे कि मेरी विश पूरी नहीं हुई तो. पर अब थोड़ा सा, जब उसको लगा कि नहीं, हर बार विश पूरी नहीं होती, यहाँ पे शादी के पहले बचपन में होती थी या शादी के पहले होती थी, तो अब कुछ नहीं, अपने आप को समझाती. पर कैसे समझाते हैं, थॉट प्रोसेस देखिए. वाहे गुरु देगा, इनमें कुछ दम नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते. मतलब हस्बैंड को बोल रही है, वाहे गुरु देगा, इनमें कुछ दम नहीं है. इतने टाइम से बोल रहे हैं कि घर बनाएंगे, पर नहीं. मतलब देखो ना, ये कितने साल से बोल रहे हैं कि घर बनाएंगे, पर घर भी नहीं बना रहे. तो मैं वो वाहे गुरु पे छोड़ देती हूँ, इनमें कुछ दम नहीं है. तो घर क्यों, तो घर 30 साल पुराना है, तो नया चाहिए, तो नया बनाना चाहिए. तो एक्चुअली पैलेस जैसा उनका जो नाम है घर का, तो सरनेम और पैलेस लिखा है, जो बराबर है. जो मुझे डिस्कशन में पता चला था, तो मैंने पूछा कि आप तो पैलेस में रहते हैं ना. सीधे रिएक्शन, वो भी सेकंड फ्लोर में. अरे कहाँ पैलेस में, तो सेकंड फ्लोर में रहती. कौन सा नीचे हमारा है, मतलब नीचे इन लॉज रहते हैं, और फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर पे पेशेंट्स और उनके हस्बैंड वगैरह ये रहते हैं. बराबर है कि. फादर इन लॉ जब तक कुछ नहीं करेंगे, तब तक हस्बैंड कुछ नहीं. बराबर है. हस्बैंड थोड़ा प्रोटेक्टिव है, एकदम सेफ चलना पसंद है, सीए है, ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करते, और इन्वेस्ट या ऐसे करते हैं जहां पे रिटर्न मिले. बराबर है कि. तो फिर क्वेश्चन पूछा, शादी में बाकी लोगों से स्टैंडर्ड बनते हैं तो कैसे फील होता है आपको. बराबर है कि नहीं. तो हाँ हाँ हाँ, मतलब एक्सप्रेशन, हाँ हाँ हाँ, काफी अच्छा, मतलब एकदम खुल के और एकदम खुश होके. तो अब तो बहुत अच्छा लगता है. ऐसा लगता है मेरे पास अब सब है. राइट. छोटे अपने लेवल, वो अपने लेवल के नहीं, अपनी लेवल तो अलग ही है. और खर्चा खर्चा करो, पर अपने नहीं, हस्बैंड के. मैं अपनी अपनी जो खर्चे रहते हैं, मतलब मदर, उसके पेरेंट्स से जो पैसा आता है कभी, तो मैं कभी खर्चा नहीं करती हूँ, सेविंग में रखती हूँ. और सब हस्बैंड की ही खर्चा करती बाय, थैंक यू. हूँ. मैं मनी ओरिएंटेड ज्यादा हूँ. हो हो, बाय. हम्म. हाँ. हाँ, अंबू राजा, राजकन्या, प्लीज म्यूट योर सेल्फ. तो मनी ओरिएंटेड ज्यादा है ना. आयश चाहिए, आराम चाहिए. मेड वगैरह सब नहीं तो बात ही नहीं जमे. बराबर है, मेड वगैरह सब नहीं तो बात ही नहीं जमे. वो बॉयफ्रेंड लड़का कुछ नहीं था, बाप रे. ऐसा मतलब सी एक्सप्रेशन, बाप रे, वो कुछ नहीं था, मतलब उनके घर मेड्स नहीं थे. लड़का जॉब नहीं करता था क्या. मैंने पूछा क्यों, मतलब आप ऐसे एक्सप्रेशन जैसे पेशेंट दे रहे कि बाप रे, उसके पास तो कुछ नहीं था, मतलब इतना गरीब था वो, मतलब मेरे माइंड में आया. तो मैंने पूछा कि वो जॉब नहीं करता था.
अरे नहीं, वो भी इंजीनियर, उसके पापा रिटायर्ड थे और इंजीनियर, उसके पापा गवर्नमेंट सर्विस में थे, पर इतना कुछ नहीं था। मेरे यहाँ तो हर संडे रेस्टोरेंट आउटिंग में जाते थे, हम जाते थे संडे रेस्टोरेंट आउटिंग, ये वो करना। मैं बोली चुपचाप निकल लो, क्योंकि ये सब उनके यहाँ पे चलता नहीं था। तो मैं बोली चुपचाप यहाँ से निकल लो। Then I asked any fear factor. So there was a fear about the lizard, rat. डर लगता है, अकेले में डर लगता है। Again, it is important question to ask in every life space कि अगर कोई घर का व्यक्ति बीमार होता है तो आपको कैसे लगता है? We have to understand the person in a disease condition कि पेशेंट जब बीमार है तो उसका रिएक्शन कैसे है या उसका मेंटल स्टेट कैसे है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर उसका डिस्पोजिशन या पेशेंट को समझना है, पेशेंट एज अ पर्सन को समझना है, तो ये इंपॉर्टेंट है हर केस में पूछना चाहिए कि आपके घर में कोई बीमार है तो आपको कैसा लगता है। हस्बैंड जब बीमार हुए तो बहुत रोना आता है, हेल्पलेस हो जाती है, मतलब पेशेंट फील हेल्पलेस। क्यों? इंपॉर्टेंट है, डोंट डोंट स्टॉप हियर कि हस्बैंड जब बीमार होते तो मेरे को बहुत रोना आता है, तो आप बोलेंगे अरे बाप रे कितना अटैचमेंट है। गो फर्दर, आस्क फर्दर, ट्राई टू गोज बियॉन्ड द थिंग्स, डोंट रिस्ट्रिक्ट यूर सेल्फ कि वर्ड्स पे मत जाओ। बराबर है, समझो कि क्यों रोती है, कि सच में इतना अटैचमेंट है कि और कोई चीज है जिससे उसको हेल्पलेस फीलिंग हो रहा है, या उसको लगता है कि हस्बैंड ने बीमार नहीं होना चाहिए। जब हम संडे को आउटिंग जाते हैं, माना उनको तकलीफ टेंशन बहुत होती है, संडे को घूमने नहीं मिलता, मतलब हस्बैंड अगर बीमार रहे तो फिर संडे को घूमने कहाँ मिलेगा। इसलिए जब हस्बैंड बीमार रहते हैं तो हेल्पलेस फील करती, और घूमने आउटिंग मतलब किटी पार्टी ये सब तो चाहिए। प्रतीक के बिना रह नहीं सकती, रह नहीं पाती। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रतीक के बिना रह नहीं पाती। कभी आउट ऑफ स्टेशन अगर गए हस्बैंड, सीए तो ऑडिट के लिए जाते हैं, तो मैं भी भाग जाती हूँ घर से रायपुर। क्यों? मैं तो इन लॉज के साथ अकेले रह ही नहीं सकती। बाप रे बोले मैं रह ही नहीं सकती बोले। क्यों? फादर इन लॉ से बात नहीं करती, मदर इन लॉ से कभी तो भी थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। और जैसे मंगलवार को अगर हस्बैंड जाना है तो सोमवार को ही भाग जाएंगे, मतलब भाग जाएंगे, मतलब दिस इज अ पेशेंट वर्ड। मंगलवार जाना है तो ये बैग वैग पैक करना है, मतलब सीधा अटैचमेंट, मतलब प्रतीक के बिना रह नहीं पाती। और जैसे हस्बैंड मंगलवार को जाना है, ये सोमवार को ही अपने रायपुर चले जाती है अपने मम्मी पापा के यहाँ। बराबर है, सो अंडरस्टैंड द थिंग्स बिहाइंड इट। बराबर है। बट दिस शोज, राइट, तो दिस इज द लाइफ स्पेस। इफ यू वांट टू रिपीट, एक दो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, बिकॉज वी हैव टू आइडेंटिफाई हमको क्या देखना है पर्सन में। दिस इज इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी, वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि केस है, माइग्रेन का केस है, तो हमको पहले क्या करना है। कोई भी केस है, so there are the different different ways to enter, different different ways to understand the different case। हम एक ही तराजू में सब केस को नहीं बिठा सकते। हो सकता है कोई केस में एलएसएमसी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल जनरल है, ये केस में माइंड दिख रहा है, तो हमको किस वे से पेशेंट को स्टडी करना है। So there are the certain principles to understand each and every case as far as the chronic case is concerned। अभी इसमें एक्यूट एपिसोड आता है, उसमें मेडिसिन अलग आएंगी, और क्रोनिक कंस्टिट्यूशनल मेडिसिन उसके रिकरेंस के लिए। सो देयर हैज वी हैव टू अंडरस्टैंड द टू वे रेमेडीज। तो अभी केस एनालिसिस कैसे करेंगे? देयर इज आल्सो सम थिंग्स आर देयर which has not written, but I think this is the sufficient to understand the person। अभी कैसे आगे जाए, क्या करे? For to understand the every case, try to understand these 3 points. In case analysis, in case understanding, we have to understand the disease in a person,
दैट इज मानसातला आजार, मतलब बीमारी। हमारा वो मनुष्य, वो पर्सन की बीमारी को पहले समझना है कि क्या बीमारी। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बीमारी, डोंट गो डायरेक्टली और जंप डायरेक्टली ओवर द माइंड और ओवर द अदर थिंग्स। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम किस चीज को ट्रीट करते हैं या करना है। हमको यही पता नहीं है कि कौन से बीमारी को हम ट्रीट कर रहे हैं। हेडेक है, अरे पर हेडेक क्या है? ब्रेन ट्यूमर से भी तो हेडेक होता है ना। आइज के कुछ कंप्लेंट ले, जैसे ग्लाउकोमा रहा, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ता है, उससे भी तो हेडेक होता है ना। क्लस्टर हेडेक भी तो है, काफी सारे हेडेक है ना, बराबर है कि नहीं? सो हम किसको ये कर रहे हैं, और वो कौन से डेप्थ का है, उसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है, उसको हमको समझना है। देन गो फर्दर। तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हमको बीमारी समझना है वो पर्सन की, तो डिसीज इन अ पर्सन। सेकंड हमको समझना है पर्सन इन अ डिसीज। पर्सन इन डिसीज मीन्स आजारातला माणूस, मीन्स वो बीमारी में वो पर्सन कैसा है। दैट मीन्स रिएक्शन ड्यूरिंग दैट इलनेस, reaction of the patient during the illness or the mental state of the patient during the illness. This is the second point we have to understand, right? Third point is we have to understand the patient as a whole. पूरा मनुष्य, पूरा पर्सन हमको समझना है। पहले तो बीमारी समझना है, सेकंड वो बीमारी में वो पर्सन कैसा है, उसका रिएक्शन कैसा है, उसका मेंटल स्टेट कैसा है, वो समझना है। और पेशेंट एज अ होल हमको समझना है। These 3 points is very important. We can apply each and every case. इन क्रोनिक केसेस, एक्यूट केस में क्या रहता है, डिसीज समझना। एक्यूट केस में सिर्फ ऊपर के 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डिसीज समझना है एक्यूट में, एक्यूट डिसीज और पर्सन इन अ डिसीज, मतलब वो बीमारी में वो पेशेंट कैसा है, बस उतना ही। पेशेंट एज अ होल हमको समझने की जरूरत नहीं है एक्यूट में। वो हमको जेनेटिक कंस्टिट्यूशनल मेडिसिन जब हम देंगे जीसीएस, तब हमको समझना है थर्ड पॉइंट। मतलब तीनों पॉइंट फिर समझना है। सो व्हाई, हाउ एंड व्हाट, try to reach the nucleus of the patient or state of the mind. Try to understand the concern of the patient. क्या है पेशेंट, क्या चाहता है, उसकी नीड क्या है। Try to understand the need of the person, because when the need is disturbed, when the need is not fulfilled, then the problem start. मतलब स्टैफिस एग्रिया में अगर सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, तो सेल्फ रिस्पेक्ट जहां पे हर्ट होता है या सेल्फ रिस्पेक्ट जहां पे हैम्पर होता है, तो he react with the mortification and humiliation, feeling of humiliation and feeling of mortification. तो वो स्टैफिस है। Then we have to understand the disposition, the basic quality of the person, the core of the person, and the sensitivity of the person in order to understand the patient as a person. Right? You must write down or keep this in your mind so that you can apply to the each and every case. Right? This is up till now. Everyone is with me. तो केस एनालिसिस कैसे करेंगे, पहले डिसीज डायग्नोसिस करना है, पर्सन डायग्नोसिस और माइजमेटिक डायग्नोसिस दें। डिसीज डायग्नोसिस क्या है, ऑलरेडी टाइटल में लिखा है कि माइग्रेन का केस है। इतना सिवियरिटी रहता है ना ये माइग्रेन के केस में, तो कुछ पेशेंट तो ऐसे सर पटकते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे बाल खींचते हैं, मतलब इंटॉलरेबल हो जाता है। दो इट इज द फंक्शनल, may cause the, if it is the repeated and severe, may cause the some structural disturbances also in complications of migraine. So disease diagnosis is the migraine, and second dysmenorrhea भी functional, क्योंकि वो मेडिसिन लिया है, सोनोग्राफी किया है। सोनोग्राफी तो नहीं है मेरे पास, मतलब मैंने उस समय लाया नहीं था पेशेंट ने, उसके बाद में भी मैंने ये नहीं किया, पूछा नहीं। सो डायग्नोसिस, हेडेक का डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हेडेक लेके आपके पास आए कि डॉक्टर साहब सर दर्द होता है, तो वी हैव टू, हमारे माइंड में ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस आना ही चाहिए। कौन से आना चाहिए? माइट बी दिस पर्सन सफर विद द टेंशन हेडेक, माइट बी दिस पर्सन सफर विद क्लस्टर हेडेक, meningitis, migraine, maybe this headache due to the space occupying lesion or brain tumor like that, or maybe because of the glaucoma.
where the intraocular pressure gets rise, increase, and causes the headache. But the expression in every disease is different. Symptomatology, signs, symptoms, and examination finding is different. That's why even very important to examine, that is even investigate the patient, thoroughly investigate the patient and come to the diagnosis. ये डायग्नोसिस का ठेका सिर्फ एलोपैथिक डॉक्टर ने नहीं लिया है, बिकॉज मोस्ट ऑफ हियर इज द प्रैक्टिशनर्स. हम डायग्नोसिस को तरफ ध्यान नहीं देते. जैसे पेशेंट आया, डॉक्टर साहब पाइल्स है, पेशेंट है ना, लेमैन 10 लोगों से बात करता है, वो बोलता है अरे दुखता है, रक्त है, अरे नहीं तुला पाइल्स है सर, हमको डॉक्टर के पास आ गए, डॉक्टर साहब पाइल्स है, हम उसके पाइल्स ही ट्रीट करते बैठते. टेक इट थरोली, proper history. Whenever necessary, do the examination, do the PR examination. We are doctor and it is essential to understand the patient disease and the pathology. बराबर है कि नहीं? अभी पिछले हफ्ते केस आया था कि पेन हो रहा है, थोड़ा सा डिस्चार्ज भी आ रहा है कि नहीं, लैट्रिन करते वक्त दर्द हो रहा है, हिस्ट्री ऑफ फिशुलेक्टोमी था पहले, पर अभी जब एग्जामिनेशन किया तो फिशर भी था, उसको प्रोट्रूडेड 3rd डिग्री पाइल्स भी था और फिशुला भी था. अगर उसको if go without examination might be someone कंसिडर करते अरे नहीं दर्द है क्या ज्यादा, हाँ पाइल्स होगा या फिशर होगा, अरे फिशुला भी, तीनों clinical conditions. So it is important to understand the disease process, pathology, and for that we have to examine, need to take the history, proper history, and then the physical examination, local examination, and then third point is the investigation. If not sure, then investigation. So tension headache में क्या होता है? It is the most common type of headache. Second is the migraine. Tension आया, headache. So there is a tight feeling, band-like discomfort रहता है mostly forehead. Even the neck muscles are tight here. तो ये tension headache रहता है. भारी भारी लगता है, यहाँ भारी लगता है, यहाँ भारी लगता है. Present more than 15 days per month. जब टेंशन आता है तो कंटिन्यू चलते रहता है, बराबर है. कॉमन इन ऑल एज ग्रुप बट मोस्टली सीन इन द फीमेल. क्लस्टर हेडेक, क्लस्टर इटसेल्फ शोज की क्लस्टर मतलब ग्रुप में आता है, मतलब सर दर्द होगा दो दिन में, एंड देन देयर वाज अ पीरियड ऑफ नो सिम्टम्स, 6 मंथ हो जाए, फिर उसके बाद आएगा, फिर 2 महीने बहुत ज्यादा दर्द होगा कंटिन्यू, मतलब रिकरेंट हेडेक होगा, और फिर शांत हो जाएगा. So bouts of frequent attack known as a cluster period can last from weeks to months, usually followed by remission period when the headache stops. And during that asymptomatic period, no headache occurs for months or even the years. The pain is excruciating around the eye even, but may radiate to the other areas of the face, head and neck. So this is a cluster headache in group. Then migraine most according to the American Society or Psychiatry Society or Migraine Society, there is a Migraine Disability Assessment Scale. क्योंकि मैं अभी PhD का टॉपिक है तो काफी नए नए चीजें समझ में आते हैं. There is a disability scale. This migraines comes under the disability disease. मतलब ये ऐसा बीमारी है जो डिसेबिलिटी प्रोड्यूस करता है, मतलब तो आपका वर्क हैम्पर करता है, आप कुछ नहीं कर पाते. Right? So this is one of the most 7th, I think disease comes under the which produce the disability. बराबर है कि नहीं? So there are the triggering factor. One is the headache तो इंटेंस रहता है, धीरे स्टार्ट होगा इंटेंस होगा, कभी कभी वन साइडेड रहता है, कभी कभी पूरा रहता है. डोंट ऐसा मत सोचो कि हेडेक है तो माइग्रेन वन साइडेड ही रहता है, मतलब अर्धटोकी दुखी म्हणतो ना तसं. Not essential कि every patient present with the one-sided headache. It may be whole. It start with this and goes backward. With there is a nausea, with there is a vomiting in most of the patient. But with this, most important is there is a aggravation with the noise, aggravation with the light, aggravation with the strong order. And there is a triggering factor. मतलब patient अच्छा है, there is a triggering factor like
अल्कोहल लेने से होता है, ड्यूरिंग मेंसेस मोस्ट ऑफ द फीमेल्स मेंसेस के वक्त भी हेडेक, मेंसेस के वक्त ही ज्यादा हेडेक होता है। हंगर मतलब फास्टिंग रहे तो डिप्राइवेशन ऑफ स्लीप रहेगा, परफ्यूम स्ट्रॉन्ग ऑर्डर टेंशन लेने से, नींद कम होने से, इवन प्रेगनेंसी में होता है, ओवर जो है उससे भी एपिसोड प्रेसिपिटेट हो सकता है। सो देर आर द प्रेसिपिटेटिंग और ट्रिगरिंग फैक्टर, these are called activators। और एक बार सर दर्द हुआ तो वो कुछ घंटे तक रहेगा, सेवरल आवर्स टू डेज, है ना। किसी का नींद से कम होता है, पर इंटेंसिटी ऑफ हेडेक इतना रहता है तो नींद ही नहीं आती मोस्ट ऑफ टाइम। पेशेंट बोलता है नींद ही नहीं आती, अगर नींद आ गई तो शायद हो सकता है कि कम हो जाए। बट फ्यू पेशेंट वो लकी रहते हैं कि माइग्रेन में भी उनको नींद आती है और वो अच्छा लगता है। बराबर है। दिस इज एपिसोडिक हेडेक, वन साइडेड और होल, विथ नौशिया विथ वोमिटिंग। कभी कभी वोमिटिंग रहना जरूरी नहीं, नौशिया होता है, या कुछ केसेस में नौशिया भी नहीं होता है। बट एपिसोडिक हेडेक, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसोडिक हेडेक, देयर इज मस्ट बी अ ट्रिगरिंग फैक्टर। ऐसा नहीं होना चाहिए डोकं का बरं दुखलं माहित नाही का बरं, यू हैव टू असेस, रहता ही है ट्रिगरिंग फैक्टर। विदाउट ट्रिगरिंग फैक्टर माइग्रेन का एपिसोड नहीं आता है, राइट। देयर कुड बी अ मेनिंजाइटिस, बट मेनिंजाइटिस में नेक स्टिफनेस रहेगा, एक्यूट हेडेक रहेगा, मोस्टली द चिल्ड्रंस आर अफेक्टेड। यहाँ फीवर रहेगा, फीवर होना चाहिए, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है मेनिंजेस, मेनिंजियल लेयर का, तो इन्फ्लेमेशन। इंट्राक्रेनियल हिमोरेज, सब आर्कनॉइड हिमोरेज के कारण नेक स्टिफनेस रहता है बट फीवर नहीं रहेगा, बट एक्यूट एकदम सडन एक्यूट सीवियर अटैक रहेगा। ब्रेन ट्यूमर, इसमें नॉन डिस्क्राइबेबल पेन रहता है, जैसे माइग्रेन में कैसा है, पल्सेटिंग थ्रोबिंग हैमरिंग पेन रहता है, बराबर है। यहाँ पे नॉन डिस्क्राइबेबल पेन रहता है, इंटरमिटेंट डल पेन रहता है, मॉडरेट इंटेंसिटी रहती है, सीवियर इंटेंसिटी नहीं रहती। may change may worsen with the exertion or change in position and may be associated with the nausea or vomiting, बराबर है। So this is due to the brain tumor mostly. Sleep disturb and early morning headache that improves during the day are characteristic of headache produced by brain tumor. 85 नाव सांगा ना. Hello, even if you are not unmuted, please mute yourself. Number 85. Focus on the session, don't focus on the work, so that you can get the maximum. बराबर है कि नहीं? Because there are the large number of patient this migraine. और मैं देखता हूँ कि मैं पेशेंट को पूछता हूँ, अरे 10 साल से सर दर्द है आपको, अभी क्यों आए हो मेरे पास, 10 साल क्यों सहन किए? डॉक्टर साहब पता ही नहीं था कि ये होम्योपैथी में होता है करके, ठीक। क्यों पता नहीं है पेशेंट को? दिस इज द क्वेश्चन टू ऑल। पोटेंशियल है जब होम्योपैथी में, तो हम उसको यूज क्यों नहीं करते, हम उसको बाहर क्यों नहीं लाते? क्यों पेशेंट थर्ड सबसे लास्ट में आता है? सबसे पहले आना चाहिए उसने। माइग्रेन अगर नॉट फॉर, दिस इज फॉर एवरी डिसीज पर कंसर्न विद द माइग्रेन, अगर माइग्रेन किसी को है तो उसने, उसके माइंड में पहले आना चाहिए कि नहीं ये होम्योपैथी से ही ठीक होता है, बराबर है। एक सेशन में मेरा पीएचडी जब होगा ना तब लूंगा, सो दैट टाइम आई हैव शोन यू द माय रिसर्च वर्क, बराबर है। तो डू द वर्क लाइक दैट, सो दैट हम एकदम विश्वास से कहें कि नहीं ये ठीक होता ही है। अभी एलर्जिक राइनाइटिस है, ब्रोंकियल अस्थमा है ना, पाइल्स है फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री की, एक्यूट फिशर है, टॉन्सिलाइटिस है, रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ब्रोंकाइटिस है, अपेंडिसाइटिस है, इवन द डीएनएस है, हम बोल सकते हैं कि दिस इज 100% ठीक होता है। अभी ऐसे कुछ बीमारी है, रुमेटॉइड आर्थराइटिस है, विटिलिगो है, लाइकेन प्लानस है, कैंसर है, इसमें हम आप या हम नहीं बोलेंगे कि अरे 100% नहीं है, पर इसमें चांसेस है। कैंसर में तो अलग चीज है, पर इवन द रुमेटॉइड आर्थराइटिस जो ऑटो इम्यून डिसीज है उसमें हाई स्कोप, हाई स्कोप, बराबर है कि ग्लाउकोमा, इवन द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो फाइनल डायग्नोसिस क्या है? माइग्रेन एंड डिस्मेनोरिया।
primary dysmenorrhea again for primary and secondary. Secondary dysmenorrhea can be because of the adenomyosis or endometriosis or fibroid of uterus. ठीक है, तो अभी लाइस्पेस को हम अभी पेशेंट का डिसीज डायग्नोसिस किया, अपन पर्सन को डायग्नोसिस करना है। तो कभी भी जब लाइस्पेस, अभी तो ये समय नहीं, अभी तो सेशन था इसलिए मैंने आराम से उसको एनालाइज किया। जब केस आता है तो हमको क्विक एनालाइज करके उसको मेडिसिन देना है। तो मेडिसिन तो जो उस समय जो मुझे क्विक एनालाइज करके जो लगा वो मैंने दिया है ना। फिर स्टडी करने के बाद ही द सेम मेडिसिन, मेडिसिन चेंज नहीं हुआ। ओके, तो लाइस्पेस टेबल के फॉर्म में अब हम इसको एनालाइज करते हैं। कभी अगर केस ट्रीट नहीं हो रही है या आपको डिटेल में स्टडी करना है केस का, तो डू दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल। मेरा एमडी का डिसर्टेशन जो था इस पे था, लाइस्पेस एनालिसिस ऑफ द पर्सन, तो अल्कोहलिज्म पे था। बट आई एम, जब मैं केस करता हूँ तो इसी तरह से, या कोई केस अगर सॉल्व नहीं हो रहा है ना, पेशेंट ने जानकारी तो दी है पर वो जानकारी को एनालाइज कैसे करना, रूब्रिक्स के फॉर्म में या माइजमेटिक एनालिसिस कैसे, तो फिर हमको दिस टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाइस्पेस इसमें क्या बताया, पेशेंट ने आफ्टर मैरिज क्रिटिसाइज ये वो है ना, ऑफेंड होती थी तो सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म दिखी, ऑफेंडेड इजीली, उसका एडेप्टेशन पुअर था और रिएक्शन काफी ज्यादा था। मतलब इतना गुस्सा मेरे को सहन ही नहीं था, अनकंट्रोल में चिल्लाती हूँ, शाउटिंग श्रीकिंग, मतलब सबको अपने इसमें कंट्रोल ही नहीं है उसका गुस्सा। तो दिस इज द हिस्टेरिकल रिएक्शन एंड एडेप्टेशन पुअर। मतलब बिफोर मैरिज जो था वो वहां यहाँ नहीं मिला तो एडेप्ट नहीं कर सकते। तो ऑल दीज आर सोरा सोरा सिफिलिस। गुस्सा बहुत, एंगर वाज वायलेंट एंड शी इज अ quarrelsome, ब्रूडिंग ओवर द, कि किसी ने कुछ बोला तो ब्रूड करते रहो। हेट्रेड टू द पर्सन हु ऑफेंडेड, मतलब किसी ने हर्ट किया तो मुंह ही नहीं देखना उसका, दिस इज द हेट्रेड फीलिंग। द्वेष, घृणा। So anger violent is the syphilis, quarrelsome is psychosis, brooding psychosis, hatred person psychosyphilic. एंगर श्रिकिंग, एंगर वायलेंट ऑलरेडी लिया है, सिफिलिस। हस्बैंड ने चिल्लाया तो रोना, सेंसिटिव टू रिप्रीमांड, दैट मींस सेंसिटिव टू स्कोल्डिंग। पेशेंट हियर इज द सेंसिटिव टू स्कोल्डिंग। अगर हस्बैंड ने कुछ बोला, गुस्सा किया तो रोती हूँ, ऐसा लगता है कि कुछ कर लूं। मतलब देखो उसमें भी, मतलब हस्बैंड ने चिल्लाना नहीं चाहिए या कुछ स्कोल्ड नहीं करना चाहिए, अगर उसने किया तो मेरी सेंसिटिविटी हर्ट हो जाती है। दिस इज द सोरा। बचपन में बहुत जिद्दी था, ऑब्स्टिनेट थी, सेंसिटिव गर्ल्स थी, बट स्टूडियस और इंटेलेक्चुअल भी थी। काम पसंद नहीं, मेट्स ही चाहिए। बाहर घूमना पसंद, इंडोलेंट, बाहर घूमना पसंद है, पार्टी किटी पार्टी में हर रोज या हफ्ते में 2-3 बार। सो शी, इससे क्या लेंगे, लिबर्टीनिज्म। शी वांट्स लिबर्टी, डोंट वांट टू बी रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। मतलब मदर इन लॉ ने अगर कुछ बोला है या कुछ ऐसा है तो क्रिटिसाइज करना है, या ये कर, ऐसा कर, वैसा, बिल्कुल नहीं, सेपरेट हो, बराबर, अपना काम सेपरेट, मुझे जो चाहिए मैं करूँ। तो लिबर्टिनिज्म, सिबलिंग jealousy and wants the luxury life. Libertinism comes under the indolent psychosis, libertinism, psychosyphilis. वीपिंग अकेले में बिकॉज ऑफ द इगोइस्टिक नेचर, की मेरी कमजोरी दूसरे ने नहीं देखना चाहिए, और सुपेरिटी फीलिंग, मैं, बराबर है, सुपेरिटी फीलिंग बार बार आती है यहाँ पे, बराबर है। मनी माइंडेड है पूरी, एंड कंटेम्पचुअस फीलिंग दिख रहा है यहाँ पे। लड़का पीछे मेरा इन्वॉल्व, पैसे मनी नहीं, कुछ नहीं, धीरे में हट गई, मैंने बोला उसके तरफ से, तो मम्मी ने कंटेम्पचुअस, फादर इन लॉ के लिए भी कंटेम्पचुअस, हस्बैंड के लिए भी कंटेम्पचुअस, डिसीटफुल, धोखा दे दिया उसने। अंबुजा सीमेंट, इंडोलेंस एंड हॉटी, अरे कौन 10-12 हजार में करेगा, इतनी ये नहीं है। कुछ 50-1 लाख रुपए मिले, 70-80 हजार मिले तो सोचेंगे, 10-12 हजार में कौन करेगा, इतना काम करेगा, इतना मरमर करेगा। मनी का शो ऑफ, तो शो ऑफ करना ज्यादा है, सुपेरियरिटी फीलिंग दिख रहा है यहाँ पे, दूसरे से ज्यादा चाहिए, उनसे कम नहीं। जो मेरे कजिन है उनसे तो मेरे को ऊपर ही चाहिए, उनसे कम नहीं। ड्रेस लिया ऐसा तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं भी ड्रेस लूंगी वैसा ही या उससे अच्छा। चिड़चिड़ होती है, जिद्दी है। हाँ, आप पैलेस में रहते हैं, जब पूछा तो क्या रिएक्शन कैसे था, वो भी सेकंड फ्लोर में, उसमें क्या दम है क्या।
कौन सा नीचे हमारा है? अगर नीचे होता तो शायद उसमें दम होता। फादर इन लॉ जब कुछ नहीं करेंगे तब तक हस्बैंड भी कुछ नहीं करेंगे, उन पे डिपेंड है husband। अच्छा लगता है ना? स्टैंडर्ड पहनते हैं तो सबसे अच्छा, सबसे ऊंचा, है ना? छोटे तो अपने लेवल के रहते हैं, अपनी लेवल तो ऊपर की है। खर्चा करो पर अपने नहीं, हस्बैंड के करो। तो इसमें क्या आता है? इंटरप्रिटेशन यूजुअल। शी इज वेरी टॉल, शी इज अ सुपेरियर, मनी ओरिएंटेड, मनी माइंडेड, वांट्स ऑफ लग्जरी लाइफ, सुपेरियरिटी फीलिंग, फियरफुल भी है, फियर ऑफ लिजर्ड रैट, इतना। हस्बैंड जब बीमार हुए तो बहुत रोना आता है, हेल्पलेस फीलिंग। बट हेल्पलेस फीलिंग बोलेंगे उसको, क्या है वो? उसको लिबर्टी चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, तो हस्बैंड को लेके संडे को घूमना है, क्योंकि पैसे वो खर्चा करते हैं ना। तो अफेक्टेशन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन इज, ये थोड़ा सा ये ना कि वो लिखा क्या रही है, इट इज लाइक अफेक्टेशन ना। क्या है वो? गलत अपने आप को प्रेजेंट कर रही है ना, कि हस्बैंड और बीमार होते हैं, मैं रोना आता है, वो नहीं रहे तो मैं भी नहीं रहती हूँ। पर किस लिए? क्योंकि घूमने नहीं मिलेगा, और वो गए तो कौन इन लॉज की किट किट संभालेगा, कौन उनको संभालेगा, तो मैं अपने घर भाग जाती हूँ। तो लिबर्टिनिज्म एंड अफेक्टेशन इन द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। प्रतीक के बिना रह नहीं पाती, कभी आउट ऑफ स्टेशन सीए के ऑडिट के गए तो मैं भी, द डिल्यूजन बिलोंग्स टू योर ओन। मतलब वो घर उसका है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पर वो घर उसको, वो अपने उस घर को घर नहीं समझती। अगर प्रतीक नहीं तो कोई नहीं, इन लॉज नहीं, मेरे नहीं। मतलब हस्बैंड को जाना है तो एक दिन पहले ही चले जाएंगे। सो डिल्यूजन, शी इज टॉल एंड शी इज ऑफ रॉयल ब्लड ऑफ सुपेरिटी, मतलब डिल्यूजन डज नॉट बिलोंग्स टू अवर ओन फैमिली, बराबर है कि? कंटेम्पचुअस विद द फैमिली। सेक्सुअल रिलेशन से ये पूछा, हाँ, दिस इज नॉट मेंशन इन द लाइफ स्पेस। हाई सेक्सुअल डिजायर है, बट मेरा जब मन रहता है और हस्बैंड ने रिफ्यूज किया तो बहुत गुस्सा आता है, फिर 2 से 3 वीक्स के लिए तो नहीं करने, मतलब पनिशमेंट हस्बैंड। तो हाई सेक्स ड्राइव, बट विद देयर इज अ एंगर एंड हेट्रेड फीलिंग वंस इट इज रिफ्यूज, तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है, तो ईगोइस्टिक एंड हॉटीनेस यू कैन सी। तो दिस इज द साइकोसिफिलिस। किसी ने कुछ रूडली गलत बात किया तो इजीली फील ह्यूमिलिएटेड, तो सेंसिटिव टू ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट, एंगर, हेट्रेड, सोरासिफिलिस। तो अभी इट इज इजी टू अंडरस्टैंड द रेमेडी, इसलिए मैंने पहले पूछा, एनालिसिस इंपॉर्टेंट है पहला। अगर आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो रेमेडी इजी हो जाएगी। अभी अगर हम पूरे मेंटल सिम्टम्स को एक लिस्ट आउट करते हैं, the patient is sensitive to criticism, sensitive to humiliation, easily get offended, adaptation poor है, hysterical reaction है, violent anger है, hatred of person है, quarrelsome है, brooding है, hatred है, indolence है, आलसी भी है। मैं पर आलसी इज नॉट लाइक आलसी लाइक कलक्रिया का भी अदर कार्बोवेज या कार्बन ग्रुप। इट इज बिकॉज ऑफ मैं क्यों करूं? अरे मेड्स है ना, मेड चाहिए, मैं क्यों करूं? दिस आलस, ये बिकॉज ऑफ द सुपेरियरिटी फीलिंग, इट इज नॉट एक्चुअल आलसी, right? Libertinism, very important. Jealousy, luxury life desire, haughtiness, money oriented, contemptuous, deceitful, show off, obstinate, haughty, lot of mental symptoms we can derive. अभी इंपॉर्टेंट है कि अभी इसने सारे हैं, इसमें से कौन से लेना? रिपोर्टाइजेशन के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, काफी बार ऐसे होता है ना, पेशेंट तो बहुत बोलता है, हम सिम्टम्स भी लिख लेते हैं, पर फिर कंफ्यूजन जब रेपर्टाइज करता है ना, तो सब कॉमन ड्रग्स आते हैं। मतलब 10 ड्रग्स ऐसे आते हैं जिसमें सभी सिम्टम्स मैच होते हैं, तो 10 ही इसी मिनिमम है, उसमें से तो एक निकालना है। तो हम जो रूब्रिक्स पुट करते हैं रेपर्टाइजेशन में, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड थ्रू द माइजमेटिकली। हम अगर माइजम को फिल्टर करें, we can, if we filter the symptoms, mental symptoms, physical, yeah, even particular, through the miasmatic filter, then जो रेपर्टोरियल टोटलिटी है, वो कुछ ही आपको सिम्टम्स आप ले पाएंगे इन ऑर्डर टू डिराइव द करेक्ट सिमिलम, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलम, है ना? सुना होगा ना जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलम। तो हम इसको एनालाइज करते हैं। सेंसिटिविटी ऑलवेज गोज टू सोरा, offended easily, Sora, quarrelsome, brooding, indolence, show off, luxury life,
है ना, मनी ओरिएंटेड, हाई सेक्स ड्राइव, लाइक lasciviousness comes under the psychosis. But psychosyphilis में libertinism and affectation words and expression psychosis. अभी सिफिलिस में कौन से है, मतलब ये पेशेंट में सिफिलिटिक सिम्टम्स कौन से है एज फार एज द माइंड इज कंसर्न? तो हिस्टेरिकल, एंगर वायलेंट, एंगर हेट्रेड, मतलब ये साइकोसिफिलिस में आएगा. इगोइस्टिक मतलब हॉटी, इगोइस्टिक सुपेरिटी, इगोइस्टिक तो साइकोसिस में आता है, बट हॉटी इसका पूरा अगर लेंगे तो हॉटी अपने को लेना. कंटेम्पचुअस सिफिलिस, डिल्यूजन थिंग्स आर द स्मॉल, delusion of superiority, delusion does not belongs to our own family, these are comes under the syphilitic miasm. तो हमको सोरा और सिफिलिस पे ध्यान देना है, ना कि साइकोसिस पे. सोरा और सिफिलिस अगर मैच हो गया तो हम साइकोसिस को मैच कब करेंगे, जब ग्रुप ऑफ रेमेडीज आएंगे उसमें हम सिफिलिस सोरा साइकोसिस को मैच करें. बट आफ्टर केस टेकिंग आई डोंट हैव मच कंफ्यूजन अबाउट द रेमेडी. बराबर है, ऐसे लगा कि इजीली मेडिसिन आ गया, है ना. सम मोस्ट ऑफ द केसेस, कुछ केसेस रहता है कि हमको स्ट्रगल करना पड़ता है मेडिसिन लाने में, डिराइव करने में, है ना. रिपोर्टराइज करो, डिफरेंशियल करो, रेमेडी कौन सी है टेक्स्ट बुक में पढ़ो, है कि नहीं. तो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो हम पेशेंट बाहर बैठे रहता है, हमको 10-15 मिनट में वो सब करके मेडिसिन को फाइनलाइज करना रहता है. सी द फर्स्ट मेडिसिन ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दो या एसएल दे दो, बिकॉज नाउ अ डेज पेशेंट इज वेरी इम्पेशंस, ही कांट वेट. अगर 15 दिन में उसको आराम नहीं मिला, कोई भी बीमारी, तो वो आपको छोड़ देगा, या 1 महीना बहुत ज्यादा हुआ तो 1 महीना रहा. ओनली फ्यू पीपल्स आर देयर हु इज हैविंग लॉट ऑफ विल पावर और पॉजिटिवनेस टुवर्ड्स द होम्योपैथी. तो फिर हो सकता है कि 1-2 महीना 3 महीना ऐसे समय दे दें. 3 महीना तो बहुत हो गया, 1-1.5 महीना समय दे, 2 महीना समय दे. क्योंकि ऐसे भी केसेस है, जैसे स्किन ऑब्स्टिनेट स्किन डिसीज था, 2 महीने आराम ही नहीं था. कुछ ऐसे केसेस इवन माइग्रेन में 2 महीने बाद आराम हुआ. तो रहते हैं कुछ केसेस, पर हर केस नहीं. अभी एक ओसीडी का केस है, कुछ निगेटिव भी एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है. ओसीडी, ऑब्स्टिनेट ओसीडी केस लिया, तो घाई घाई में पता नहीं, अभी पेशेंट काफी सारे बैठे थे, ट्यूबरकुलिनम आया, मैंने दिया. जब मैंने केस को वर्कआउट किया, ट्यूबरकुलिनम कहीं पे भी बैठ नहीं रहा. केस वर्किंग करने के बाद मेडिसिन दूसरा है, पर पेशेंट ही नहीं आया मुझे वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने. बराबर है. सो वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज एंड क्लियर अबाउट आवर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस. हम जब ये एनालिसिस बार 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 करेंगे ना, क्योंकि जब फर्स्ट एमएल धौले में मैं एमडी एडमिशन लिया था और फर्स्ट केस लिया था, तो मुझे 2 से ढाई घंटे लगे थे एक केस के लिए, 2 घंटा. और जब थर्ड ईयर, जो एमडी का थर्ड ईयर, या जब मेडिकल ऑफिसर बना, तो आधे पौन घंटे 1 घंटे में केस हो जाता था. अभी आधे घंटे में, पौन घंटे में. सो मतलब इसका मतलब क्या है कि 8 साल हो गए, 10 साल हो गए प्रैक्टिस को, कि हम रिफाइंड होते हैं. हमारा जो एक्सपीरियंस है, पेशेंट अंडरस्टैंडिंग, उसका बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, उससे हम मेडिसिन डिराइव कर पाते हैं. मतलब शॉर्ट पीरियड में हम पेशेंट को समझते हैं. तो इसको प्रैक्टिस चाहिए ना, क्योंकि हम लॉट ऑफ केसेस में एनालाइज किए, तो तब हम इस पे पहुंचे हैं. तो कुछ केसेस में गलती हो भी जाती है ना. You can give result in every case in a first instance or first in 2 weeks, right? So this is the miasmatic analysis. Sensitive to noise, sora, pain, maddening, intolerable. This pain की intensity, कि वो shriek, shouting, चिल्लाती है, तड़पती है, this is the syphilitic और सोरा syphilis, है ना. श्रीकिंग पेन विथ हंगर इंटॉलरेंस, सन सेंसिटिविटी इतना है कि थोड़ा भी धूप में नहीं जाती, गाड़ी चाहिए, एसी चाहिए, पेशेंट इज हॉट. तो दिस इज द जनरल सिम्टम्स, राइट. तो टोटलिटी क्या आएंगी, पेशेंट. हाँ, माइजम क्या है, अभी जैसे माइग्रेन में माइजम क्या आता है, सोरिक माइजम आता है, साइकोटिक माइजम, सिफिलिटिक माइजम. चलो, पेशेंट का अंडरस्टैंडिंग मैंने बताया, आप माइजम बता दीजिए. एनीवन, माइग्रेन कम्स अंडर विच माइजम? Syphilitic. Psychosyphilitic. साइकोसिफिलिटिक. और एनीवन वांट टू शेयर? सी एपिसोड, इफ यू कंसीडर द एपिसोड, सिंगल एपिसोड, एंड ये जिस तरह से पेशेंट का एक्सप्रेशन है, सडन, सीवियर,
इतना की तड़पती है, श्रीकिंग शाउटिंग पेन विद मैडनिंग टाइप ऑफ पेन, बराबर है. दिस इज द comes under the psoriatic syphilis. And if you see the whole migraine agar disease as such, it comes under the psychosyphilis. The syphilis part is there. So as there is a syphilis part, as there is a syphilis part, we have to take the rubric which belongs to a syphilitic myxome. अगर आप सोरिक माइजम से मेडिसिन निकालने की कोशिश करेंगे या साइकोटिक माइजम से, तो वो एग्जैक्ट सिमिलिमम नहीं होगी. पेशेंट को आराम मिलेगा पर आराम मिलेगा, क्योर नहीं होगा. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोरा साइकोसिस सिफिलिस इन पेशेंट, गिव द बेसिक कोर ऑफ जो डिस्पोजिशन है या उसका जो सेंसिटिविटी है, जो पेशेंट की सेंसिटिविटी कंसीडर करना है टोटलिटी में, और सिफिलिटिक या साइकोसिफिलिटिक सिम्टम्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है. अभी वो सोरा या साइकोसिफिलिटिक सिम्टम्स को रेपर्टाइज करके जो ग्रुप ऑफ रेमेडी आती है उसको डिफरेंशिएट करना विद द हेल्प ऑफ साइकोटिक सिम्टम. समझ में आ रहा है? क्योंकि हमने ये साइकोटिक सिम्टम, शो ऑफ दिख रहा है, लग्जरी चाहिए, कॉरलसम है, एंगर बहुत ज्यादा है, मनी ओरिएंटेड है, हाई ड्राइव है, राइट. तो कैसे करेंगे इसको? दिस इज बेस्ट एग्जांपल. केसेस काफी है माइग्रेन के, मतलब मैं शो कर सकता हूँ, पर कैसा ना इसमें वीडियो प्रॉपर एनालिसिस हम अच्छे से कर सकते हैं, है ना. तो माइजमेटिक टोटलिटी में हम क्या लेंगे? सेंसिटिविटी फर्स्ट, सोरा, दिस इज द सोरा, देन सिफिलिटिक, हिस्टेरिकल, एंगर वायलेंट, एंगर हेट्रेड विथ, साइकोसिफिलिटिक है हॉटी, ऑल दिस इगोटिज्म, सुपेरियर फीलिंग, ये वो सब एक ही रूब्रिक में आ जाता है, हॉटी. दिस इज द सिफिलिटिक. कंटेम्पचुअस टू एवरीवन, कंटेम्पचुअस टू एवरी रिलेटिव. अरे वो अच्छा नहीं, वो नहीं, अरे उसने, वो मेरे लेवल का नहीं है ना, फादर इन लॉ से बात नहीं है ना, वो ऐसे ही है वैसे. कंटेम्पचुअस. डिल्यूजन, थिन अपीयर स्मॉल, शी इज वेरी टॉल एंड ऑफ रॉयल ब्लड. मतलब मेरे यहाँ तो मेड्स से हम रेस्टोरेंट में जाते थे, संडे पे आउटिंग पे जाते, अरे इसके पास तो कुछ भी नहीं. इज इट राइट? इज इट विथ यू? इफ यू हैव एनी, हो सकता है कि मैंने गलत इंटरप्रिटेशन किया हो, बराबर है, हो सकता है. सो if you have any ये, तो you can ask. Delusion does not belongs to her own family. Libertinism, affectation words and expression in pain, maddening, take this pain, though it is a, you can say ये common है करके, take this. If the patient having the nausea and vomiting, take that. Vomiting is a syphilitic, though it is even the migraine, not take the vomiting pain with, squeaking pain with, shouting pain with, or general symptoms, hunger intolerance, sun heat aggravation, and the patient is hot. अभी इसको रेपर्टाइज किए, इसमें से भी कुछ उड़ा सकते हैं. सेंसिटिविटी रखना है, इसमें कुछ साइकोसिफिलिटिक है या प्योरली सिफिलिटिक और सोरिक ले सकते हैं. सो देर आर लॉट ऑफ सिम्टम. इतना जनरली लेता नहीं हूं मैं, पर इसमें भर भर के है, कैरेक्टरिस्टिक है उतना, तो फिर हमने पूरा ही लिया है. तो रेमेडी कम अप इज द प्लेटिना, थ्रू एंड थ्रू, थ्रू एंड थ्रू. अभी दूसरा स्टैमोनियम आ रहा है, पर कहीं पे सी रेपर्टाइजेशन में आना इज नॉट इम्पोर्टेंट. आपका अंडरस्टैंडिंग, गो थ्रू द टेक्स्ट बुक, थ्रू योर अंडरस्टैंडिंग, सी द सिफिलिटिक, सी साइकोटिक एंड सी सोरिक्स, सी स्टडी द सेंसिटिविटी ऑफ दैट पर्सन एंड सेंसिटिविटी ऑफ दैट रेमेडी. पल्सिटिला लग रही है कहीं पे, अकेली रोती है, ईगो, हॉटीनेस, कम सल्फर एंड चाइना. सो ये अगर देखेंगे 4 रेमेडी, तो इसमें से जो सेकंड डिफरेंशियल अगर आ भी सकती है बाय चांस, तो यह है चाइना, because of the haughty nature and contemptuousness. But if you see the sensitivity, the intellectual superiority feeling, delusion not belongs to the own family. I am superior, tall, I have royal blood, and affectation of expression. क्यों ऐसा रूब्रिक लिया है? I explain already. बराबर है कि अरे हस्बैंड तकलीफ होती है, रोना आता है हस्बैंड, अरे पर क्यों? क्योंकि बाहर जाने को नहीं मिलता. पर हाउ शी एक्सप्रेस, सो लॉट ऑफ अफेक्टेशंस यू कैन सी, है ना.
अफेक्शनेट इज डिफरेंट. अफेक्शनेट, प्रेमळ, लवली, काइंडली. बट अफेक्टेशन इज ढोंगी. ढोंगी इन द सेंस जो है वो नहीं दिखा रही, वो कुछ और ही रिफ्लेक्ट कर रही. राइट? आर यू विथ मी? So, going further, the remedy prescribed is the final platina at the time first prescription. 25 fee. See, डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट. कोई भी आप कोई भी क्लास कर रहे हैं, कोई भी डेट इंपॉर्टेंट है. कौन से इंटरवल में कौन सी रेमेडी रिपीट किया है, कौन सी इंटरवल में एसएल दिया है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं कि ये अभी फिर साल भर बाद का अगर फॉलोअप दिखा रहा है, तो दैट इज नॉट अ important thing or analyzing thing. So first prescription was platina, 200 drop start. एक ही डोज दिया था तब, क्योंकि मुझे लगा कि सेंसिटिविटी ज्यादा है. अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है कि माइग्रेन का कोई भी पेशेंट है, आपका अनुभव शायद दूसरा हो सकता है, पर मेरा अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ. कोई भी माइग्रेन का पेशेंट आता है और आप जब केस लेते हैं तो उसका एलएसएमसी से देखना है कि उसकी सेंसिटिविटी कहाँ जा रही है और ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है. और ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सप्रेशन आपने एक्यूट रेमेडी निकालना है. सर्टन एक ही नहीं रह सकती है, देयर कैन बी डिफरेंट. तो वो उसको एसओएस देना है. कीप दिस इन योर माइंड, बिकॉज आपने अगर ये नहीं किया तो पेशेंट छोड़ के जाएगा. क्योंकि एक फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन कितना भी सिमिलिमम है, तो एक मैं फर्स्ट डोज दूंगा और पेशेंट को माइग्रेन का अटैक नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा. दिस इज रॉन्ग. अटैक आएगा. हो सकता है इंटेंसिटी कम हो, थोड़ी कम हो, 20-30%. हो सकता है 50% कम हो, फ्रीक्वेंसी भी कम हो इन 15 डेज. हो सकता है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा है, हमको पोटेंसी बढ़ाना पड़ेगा, प्लैटिना 1 देना पड़ेगा अगले हफ्ते या 1 महीने बाद. हो सकता है उसकी जो पावर है, डोज है उसका या पोटेंसी का सिमिलिमम नहीं हुआ है, रेमेडी का सिमिलिमम हुआ है. बराबर है कि नहीं? तो एसओएस मेडिसिन, बिकॉज जो पेशेंट आई है तब अटैक में नहीं आई ना, नॉट ड्यूरिंग अटैक. पेशेंट तो अपने असिम्टोमेटिक स्टेज में आई. अटैक कब आएगा? हफ्ते भर में, 2 दिन में, 4 दिन में, पता नहीं, जब ट्रिगरिंग फैक्टर आएगा तो. राइट? तो गिव द एसओएस मेडिसिन. कुछ मेडिसिन जो एलएसएमसी से निकालो. तो मैंने नक्सोमिका, बिकॉज ऑफ स्टडिंग नक्सोमिका और ब्रायन ने दिया और बोला कि जब भी आपको दर्द हो, अभी जब भी मतलब ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला रहता है, जब भी पेशेंट को अगर रात को 2 बजे दर्द होगा तो आपको कॉल करेंगे. सो इफ यू आर विलिंग टू टेक द कॉल देन यू क्या. बराबर है कि नहीं? एक ऐसे ही केस था कि आईएएस, मतलब बड़ा आईएएस ऑफिसर के लेवल के वो पर्सन थे. बराबर है कि नहीं? तो काफी 3-4 महीने से माइग्रेन के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं. तो एक अभी 4 महीने बाद या 5 महीने बाद एपिसोड आया. रात, अभी संडे रात को 10 बजे कॉल किया. मैं बाहर घूमने गया, 1-2 बार कॉल किया, और फिर जब मैं आया 10-15 मिनट बाद और कॉल कॉल किया, तो उसके जो मिसेस थे पेशेंट के, तो मेरे पे ही भड़कने लगे. मतलब, डॉक्टर आप नहीं बोला था, फिर आप फोन नहीं उठाते, फिर पेशेंट को इतना तकलीफ है. मतलब ऐसा लगा कि क्यों बोला कि कभी भी आप फोन कर सकते हैं करके. मतलब संडे को भी क्लिनिक, और क्लिनिक से मैं संडे को 9 बजे आया, खाना खाया, 10 खाना खाने के बाद बाहर घूमने गया. पर अभी घूमने गया तो फोन पास में नहीं था, फोन घर पे था. बराबर है. सो आप बता सकते हैं कि क्या करना है. कुछ पेशेंट को हम ऐसा भी, या कोई डॉक्टर बोलते हैं कि अगर एपिसोड आया तो पेन किलर ले लो, या अगर नहीं छुआ आराम, रात को आया तो आप ले लो. तो मैं क्या करता हूँ कि मैं पेशेंट को एसओएस मेडिसिन देता हूँ और बोलता हूँ कि यू कैन कॉल मी. बराबर. सो प्लैटिना 200 ड्रॉप दिया है स्टार्ट, और एसएल दिया है. अभी 15 दिन में, पहले हफ्ते में 1-2 बार आता था, 15 दिन में एक एपिसोड आया है. बराबर है. पर इंटेंसिटी काफी कम थी. और जिंदगी में, मतलब 14 साल में ऐसा हुआ नहीं कि मुझे नेक्सडॉम नहीं लेना पड़ा. दिस इज द फर्स्ट टाइम कि नेक्सडॉम नहीं खाया मैंने, टैबलेट नहीं खाया. और इंटेंसिटी बहुत कम नहीं थी. तो उसने कॉल किया और मैंने विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट टोटेलिटी ब्रायन या 1M लेने के लिए बोला. अभी जब एक्यूट एपिसोड आता है और जब कोई एक्यूट मेडिसिन दे रहे हो इन विथ रिस्पेक्ट टू द माइग्रेन, हाँ, सभी इसमें अप्लाई नहीं होगा. तो जब हम अब कोई भी मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं, गिव इट इन द हायर डोज. 200 के ऊपर, या 200 1M, नॉट 10M और नॉट इवन 30. 1M in a repeated dose or 200 in a repeated dose. Don't give the single dose and wait and watch. ऐसा नहीं करना एक्यूटिस में. तो मैंने क्या दिया है उसको, 10-10, 15-15 मिनट में 3 डोज लेने के लिए बोले थे.
and patient was feels better with the Briania 1M in a 3 dose in an acute episode. तो माइग्रेन में ऐसा रहता है, क्रोनिक कंस्टिट्यूशनल मेडिसिन तो प्लैटिना दिया है, पर अभी जो प्लैटिना ने वर्क किया है, दैट मीन्स उसका कहना है कि इंटेंसिटी कम थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना कम सर दर्द हुआ है इंटेंसिटी, और मुझे नेक्सडॉम नहीं लेना पड़ा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फॉलो। This is a follow-up of first follow-up after 2 weeks. One episode of headache better with the Briania 1M. Intensity and frequency are reduced. मतलब जो एक हफ्ते में एक या दो बार होता था, या एटलीस्ट एक टाइम होता था, क्योंकि समर के डेज से अभी 2 हफ्ते में एक बार हुआ है, तो मैंने थोड़ा सा प्लैटिना 200 रिपीट करना पड़ा। ऐसे सिंगल डोज देके भी वेट एंड वॉच कर सकते हैं कि और कितना कम होता है, बट आई रिपीट द डोजेस 3 days डेली फॉर 3 days, मतलब 3 पैकेट दिया है, या स्मॉल इसमें दिया है 3 दिन सुबह लेने के लिए बोला, और बाकी SL दिया है 2 weeks के लिए। बहुत ज्यादा मेडिसिन भी नहीं दे सकते हैं। 2 weeks इज द आई थिंक द सफिशियंट टाइम पीरियड। 1-2 महीने का मेडिसिन देंगे तो पेशेंट हाथ से निकल जाएगा। ये फॉलोअप 20 to 6 का है। सर दर्द भी एक बार जो आया था 15 दिन के पहले, मतलब 20-25 दिन पहले फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में, तब से सर दर्द नहीं है, और वो भी सर दर्द में बाहर की दवाई नहीं लेना पड़ा। अभी इसकी सेंसिटिविटी देखो पेशेंट की, कि पहले रात को मोबाइल नहीं देख सकती थी, ज्यादा देर तक मोबाइल नहीं, फंक्शन में नहीं जा सकते थे, लाउड नॉइज जहाँ पे वो मतलब पार्टी एंजॉय नहीं कर सकी थी। ये किटी पार्टी जो बोला वो तो दिन की जो लेडीज लोगों में होती है, पर रात का जैसे फंक्शन जहाँ पे लाउड नॉइज है, डांस करना है, उसको डांस करना पसंद था पर डांस नहीं कर पाती थी। तो अभी उस हिसाब से उसने बोला है कि अभी थोड़ा सा मोबाइल भी देखती हूँ मैं रात को, तो मुझे ऐसे तकलीफ नहीं होती। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेंसिटिविटी रिड्यूस हुआ है। और उसका डिस्मेनोरिया जो था, उसका भी मेंसेस आया था, तो डिस्मेनोरिया का उसको काफी दर्द था, सीवियर पेन। तो उन्होंने कॉल किया था, तो इन डिस्मेनोरिया सी 200, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे गुरु है, या जो सर थे, तो डिस्मेनोरिया में मोस्टली आई यूज द इफ इट इज इंडिकेटेड पल्सिटिल और मैकफॉस, तो इन 10 ml डोजेस इन रिपीटेशन, आधे आधे घंटे में 2 या 3 डोज। सो दैट वाज बेटर विद दैट मेडिसिन। ठीक है, डिस्मेनोरिया का पेन। और तभी फिर से मैंने प्लैटिना 200 3 डोज रिपीट किया। ठीक है, ये सेकंड फॉलो। अभी 22/6 और 15 दिन बाद, मतलब बीच में ही वो 15 दिन में एक बार ऐसे ही उसके घर में शादी थी, रिलेटिव्स मतलब फैमिली मेंबर, और वो 2 से 3 दिन जो शादी का हॉल होता है होटल में थी, वहीं पे थे। वहां पे शोरगुल, खाना बराबर नहीं मिलता था, नींद नहीं होती थी। तो वो शी केम अप इन द, फोन किया उन्होंने कि मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मैं ये शादी के हॉल में ही हूँ, सहन नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको बुला लिया क्लिनिक में, तो एक्यूट टोटलिटी लेके संगवाइन एरिया दिया। अभी जब एक्यूट एपिसोड लेके पेशेंट आता है, दिस इज नॉट ओनली द माइग्रेन, कोई भी इवन एक्यूट अस्थमैटिक अटैक में भी आता है, तो डोंट जस्ट गिव द मेडिसिन एंड लीव द पेशेंट। डोंट लीव, ask the patient to sit there, give the medicine in repeated doses। अगर आपको लगता है एक डोज से ही आपका पेशेंट ठीक होगा, डोंट डोंट प्रॉब्लम है कि नहीं, आप एक डोज देके भी वेट एंड वॉच कर सकते हैं। जैसे मेरा है तो मैं रिपीटेशन करता हूँ 10 मिनट में 15, एटलीस्ट 2 से 3 डोज। अगर मेडिसिन सही है तो 3 डोज में पेशेंट को आराम मिलना ही चाहिए। तो संगवाइन एरिया दिया 10-10 मिनट में, 20-25 मिनट बाद पूछा, 30 मिनट बाद पूछा कैसे लग रहा है, पेशेंट ने बोला हाँ मुझे अभी अच्छा लग रहा है। तो पेशेंट घर गए, और फिर 2-2 3-3 घंटे में रिपीटेशन करके पेशेंट वाज बेटर विद द संगवाइन एरिया। ठीक है, सो दिस इज इवन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बाय चांस संगवाइन एरिया 3 डोज देके भी अगर उसको आराम नहीं मिलता, दैट मीन्स योर रेमेडी इज रॉन्ग। सो मैं पटाख से दूसरी रेमेडी चेंज करता, मैं देखता रहे क्यों नहीं हुआ, फिर कौन सा मेडिसिन आएगा। अभी संगवाइन एरिया 1M भी दे सकता था, शायद 1M नहीं होगा तो 200 रिपीटेशन किया। सेकंड रेमेडी कम अप हियर इज द नक्सोमिका, है ना, फास्टिंग भी था, नॉइज भी था, नींद भी नहीं आई, ये सब मिक्स पैटर्न था, बराबर। सो 5-7 को दिया, फिर 20-7 को पेशेंट आई फॉलोअप के लिए। सी मतलब पहली बार तो मैंने पल्सिटिला 10 ml दिया था डिस्मेनोरिया में। अभी जो मेंसेस आए तो उसमें पेन ही नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ा सा हेवीनेस था। और इवन द फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ, माइग्रेन का तो है ही कि फर्स्ट टाइम, ये डिस्मेनोरिया में पेशेंट का कि फर्स्ट टाइम कि मुझे बाहर की दवाई नहीं लेना पड़ा, और आराम था, तकलीफ नहीं हुई, और मैं अपने काम कर रही थी।
कितना कि ये मुझे अच्छा ऐसा लग रहा था कि जिंदगी में कभी मैं मेंसेस में बाहर नहीं गई या कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया, पहली बार की जैसे मैं फंक्शन में भी गई क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेंसेस आए। तो हस्बैंड भी एकदम सरप्राइज हो गया, अरे बाप रे मेंसेस शुरू है, ड्यूरिंग मेंसेस के बाद ये फंक्शन अटेंड कर रही है फिर। सो नो एपिसोड ऑफ हेडेक वाज बेटर विद सॉरी, हाँ ये नो एपिसोड इवन आफ्टर सीन मूवीज एंड फास्टिंग, बराबर है, फील्स मच बेटर। तो प्लैटिना 203 डोजेस और रिपीट किया है। तो यहाँ पे हम एसएल भी दे सकते थे, मैंने इसको रिपीट किया है 13/9, अभी 25/9। नो एपिसोड ऑफ हेडेक सिंस लॉन्ग, है ना, नो एपिसोड ऑफ हेडेक, डिस्मेनोरिया भी नहीं है, हेडेक भी नहीं है, सिंस लॉन्ग टाइम, है ना। तो यहाँ पे मैंने एसएल प्रिस्क्राइब किया है 25/9, ठीक है। और फिर 7/10 को पेशेंट आया, तब भी पेशेंट को हेडेक का एपिसोड नहीं था, है ना, डिस्मेनोरिया, हाँ, इवन नो पेन इन फ्लो, 2 से 3 महीने, 2 महीने हो गए कि पेन भी नहीं है ड्यूरिंग मेंसेस। पेशेंट द नॉर्मल 3 डेज फ्लो गया, सब अच्छा रहा। एपिसोड अभी उसने देखो सेंसिटिविटी कैसे नॉर्मलाइज होती है, उसने मूवी देखी 3 से 4 घंटा रात भर, कभी आधे घंटे भी अगर मूवी या कुछ देखती रात में तो उसको सर दर्द शुरू हो जाता था। अभी फुल मूवी देखा पर उसको एज सच एक्यूट अटैक नहीं आया, सुबह थोड़ा सा सर भारी लगा बोले, पर ऐसे तकलीफ नहीं हुई। So here you can conclude कि you with your GCS, genetic constitutional medicine, you are able to desensitize the sensitivity and you can able to remove the obstruction with your remedy. So at headache level, migraine episode and at the dysmenorrhea level, and patient feels better. बराबर है। सो देर इज अ फॉलोअप टिल, अभी कल भी फोन किया था मैंने कि इज देर वाज एनी हेडेक, सो देर वाज नो एपिसोड ऑफ हेडेक। यहाँ पे भी हेडेक का एपिसोड नहीं है 9th मंथ में, 10th मंथ में भी एपिसोड नहीं है, 6th 7th मंथ में महीने में एक बार एपिसोड आया था, है ना। पहला एपिसोड तो ब्रायनिया, दूसरा सेंगवानियर और तीसरा थोड़ा माइल्ड हेडेक, माइल्ड हेवीनेस था, वो अपने आप चले गया। तो अगर गलती से कुछ होता भी है, आता भी है, तो अपने आप जाना चाहिए ना। दिस इज द वे ऑफ क्यूर, this is the way of curing the patient, right? So in two way the migraine headache and even the dysmenorrhea is getting better। अभी अगर बाय चांस अभी पेशेंट को छोड़ना नहीं है, 5वें महीने में आई, अभी 10वां महीना, 4 साढ़े 4 महीने हो गए, और पेशेंट को 2 से 3 महीने अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, हो सकता है मैं अभी आगे ऐसे ली दूं क्योंकि एपिसोड अगर नहीं है, और बोले कि माइल्ड थोड़ा सा आया अपने आप चले गया, तो भी मेडिसिन रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर एपिसोड आया और सिग्निफिकेंट था, तो देन यू कैन, वी कैन गिव द थिंक ऑफ प्लैटिना 1 ml ऑल्सो, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी एज फार एज माई द थिंग इज कंसर्न, राइट। अभी इसमें हमको काफी केसेस में कंफ्लिक्ट देखना पड़ता है, इस मतलब काफी केसेस में जहां पे डाटा हमको नहीं मिल रहा है। कंफ्लिक्ट इज द थिंग्स दैट make the your case very easy if you able to understand the conflict of each and every disease. If you know the conflict of each and every disease, then you can able to make the case easy। मतलब तुमको पूरा इतना सारा पूछने की जरूरत नहीं है, यू मस्ट बी विद द पॉइंट टू पॉइंट कि ये एरिया में प्रॉब्लम हो सकता है, ये पूछो बस। उसमें आपको सेंसिटिविटी, डिस्पोजिशन, कोर, कंसर्न है ना, नीड ऑफ द पेशेंट सब समझ में आ जाएगा। तो अभी इसमें माइग्रेन का कंफ्लिक्ट क्या है? द माइग्रेन का कंफ्लिक्ट है पावरलेस फीलिंग, कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, हेल्पलेस फीलिंग, और हेल्पलेस इन अ गिवन सर्कमस्टांसेस, माय हैंड्स आर टाइड, आई एम नॉट डूइंग, देयर वाज नॉट बीइंग इन कंट्रोल ऑफ सिचुएशन, मेरा सिचुएशन पे कंट्रोल नहीं है। सो हम डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि ऐसे कोई इंसिडेंस हुआ है जहां पे आपको हेल्पलेस फीलिंग हुआ है, ऐसे लगा कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बराबर है कि नहीं। फीमेल स्केयर फ्राइट करने का मेरे टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट, इट इज अनफोर्सिन डेंजर, कुछ तो होने वाला है, कुछ होगा, ऐसे डेंजर फीलिंग आता है, कुछ फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस आता है, दैट विल अगेन मे ट्रिगर द माइग्रेन। रेजिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट इज द इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट हियर।
स्ट्रॉन्ग अपोजिशन अगेंस्ट अ पर्सन, मतलब आप पर्सन या पेशेंट कुछ कर रहा है, पेशेंट पर्सन है ना, और उसको अपोज कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन अगेंस्ट अ पर्सन बाय पेरेंट्स, स्टेप पेरेंट्स, सिबलिंग, रिलेटिव्स, स्पाउस, टीचर, कलीग, सुपरवाइजर, डॉक्टर, बॉस, एंड अगेंस्ट अ सिचुएशन एट होम और स्कूल। अगेंस्ट डिसीजन, कुछ उसने डिसीजन लिया उसको अगेंस्ट में, मेड ओवर वंस हेड, और बीइंग फोर्स्ड टू डू समथिंग अगेंस्ट वंस विल, मतलब उसको इच्छा नहीं है तो भी उसको करने लगा। दैट्स व्हाई इफ यू सी इन माय कंक्लूजन ऑफ 30 केसेस, जो मैंने कुछ एक साल पहले 30 केसेस का रैंडमली स्टडी किया, जब मेरा पीएचडी का ये माइग्रेन टॉपिक मतलब स्टार्ट किया था पीएचडी, बिकॉज 30 केसेस आर नॉट इनफ टू कंक्लूड द थिंग्स वेरी फाइनली, बट रफली ऐसा कंक्लूजन आया था कि डिटेल स्टडी ऑन 13 माइग्रेन केसेस विच वाज डायग्नोस्ड अकॉर्डिंग टू डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड वाज रैंडमली सिलेक्टेड, और उसका ये कंक्लूजन आया था कि मोस्ट ऑफ द 30 केसेस में से 22 केसेस वाज फुल्ली क्योर्ड, मतलब 73% जो थे आउट ऑफ 100 वाज फुल्ली क्योर्ड, 6 केसेस वाज पार्शियल इंप्रूवमेंट, एंड ओनली 2 केसेस वाज नॉट क्योर्ड और अनक्योर्ड। वो भी अनक्योर्ड मतलब 3 महीने 4 महीने हो गए थे, पेशेंट छोड़ गया था, मतलब छोड़ चले, मतलब कंटिन्यू नहीं किया था पेशेंट ने। टाइम पीरियड जो इन्वॉल्व होता है मोस्टली टू ट्रीट द माइग्रेन इज द 4 to 6 month, नॉट मोर देन दैट। मतलब पेशेंट को ऐसे भी है कि फर्स्ट आप, ऐसे कोई केसेस है जैसे केस में जैसे लैकेसिस दिया था, तो एक बार देने के बाद एपिसोड ही नहीं आया, मतलब 2 महीने पेशेंट ने मेडिसिन लिया, 3 महीने फिर छोड़ दिया। क्योंकि जब पेशेंट छोड़ता है तो पूरा ट्रीटमेंट या कोर्स हुआ नहीं है, तो हम कॉल करते हैं 3 महीने 4 महीने या दूसरे महीने तीसरे महीने, तो हम उसका फॉलोअप लेते हैं कि बा क्यों नहीं आया। तो पेशेंट ने कहा नहीं, सरदर्दी नहीं हो रहा, तो क्या क्यों आओ, राइट। हियर द फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड देन द मेल, क्योंकि 30 केसेस में से 24 केसेस फीमेल की थी, 6 केसेस मेल की थी। अभी फीमेल में भी जो केसेस है वो मैरिड ज्यादा थी, और वो थी जो जॉब करती है, बराबर है। तो यहाँ पे कैसा है ना, पावरलेस और रेजिस्टेंट कन्फ्लिक्ट, ये दो कन्फ्लिक्ट को आपको असेस करना है। पावरलेस मतलब हेल्पलेस है, और रेजिस्टेंस मतलब अपोज हो रहा है, जो मैं मुझे करना है उसमें अपोज हो रहा है, और मुझे ये करना पड़ रहा है जो मुझे नहीं करना है, बराबर है कि नहीं। अभी ऐसे केसेस में, माइग्रेन के केसेस में हमको क्या प्रिकॉशंस लेना है, हमको पेशेंट का वही नीड टू अंडरस्टैंड द एपिसोड एंड मेंटल एंड फिजिकल एक्सप्रेशन ड्यूरिंग एपिसोड, मतलब पेशेंट ड्यूरिंग डिसीज को समझना है एपिसोड में। इसलिए कभी ऐसा भी अगर पेशेंट पास में है, अगर आपने एसओएस मेडिसिन नहीं दी तो पेशेंट के बोलना कॉल करना, तब आपने हिस्ट्री लेना है, शॉर्ट हिस्ट्री, और तब मेडिसिन डिसाइड करना है कि इसको क्या देना है। तो किसी के रिलेटिव्स को उनके बुला लेना और उनको मेडिसिन देके फिर पेशेंट को बोलना है कि कंटिन्यू मेडिसिन, ये मेडिसिन लेके मुझे 2-4 घंटे 6 घंटे बाद फोन करना है। You can do like that also. Most of the time need to prescribe acute remedy for episode as per acute totality. इसलिए एसओएस में मेडिसिन देखे रखना है, 3-4 मेडिसिन। तो इफ यू आर श्योर कि 1 या 2 मेडिसिन यही आ सकती है, इवन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो सिलेक्ट कर रहे हैं उससे भी आपको समझता है कि एक्यूट मेडिसिन कौन सी है, बिकॉज यू हैव टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन एंड एक्यूट मेडिसिन। बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एज गेट रिड्यूस ग्रेजुअली। मतलब एक दो ऐसे केसेस जैसे मैंने बताया कि मेडिसिन दिया और एपिसोड ही नहीं है, पर हर केस में ऐसा नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। रेमेडी सिमिलिमम है तो ग्रेजुअली इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए। इंक्रीज डोजेस और पोटेंसी ऑफ जीसीएस व्हेन एवर रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है कि ये पेश 200 पोटेंसी देने के बाद केस स्टैंड स्टिल है, मतलब कुछ केसेस है अभी कि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कम हो गई पर आ ही रहा है, कभी वो कॉल करती है नहीं करती है, पेन किलर ले लेती है, सो वी हैव टू जंप टू द हायर पोटेंसी। Don't, if your remedy is correct, if you feel the remedy is correct, so jump to the higher potency instead of jump to newer medicine. GCS correct the sensitivity of the person, उसकी सेंसिटिविटी नॉर्मलाइज हो सकती है। मतलब वो धूप में गई, म्यूजिक है, शादी में गई है, फास्टिंग हो रही है, तब भी सर दर्द नहीं होना चाहिए।
That means you correct the sensitivity and the patient get cure. Right? This is the some माइग्रेन का जो थोड़ा स्टडी किया था तो पेपर में पब्लिश हुआ था. You can see weekly Sunday session going on. ये सेशन तो मैंने जस्ट सबके लिए ये किया था. But there is a weekly Sunday session शुरू है since 1.5 month, जहाँ पे मैं different cases शेयर करता हूँ, अंडरस्टैंडिंग शेयर करता हूँ. It was start with the case taking, practical approach with the physiognomy and with the observation, कैसे हम rubrics को सिलेक्ट करें, ये किया था. So if you want to join that, you are free to join, है ना. वो भी आप जो 6 month का पूरा कोर्स है जिसमें डिफरेंट एंगल के केसेस है, नॉट माइग्रेन ओनली, इवन द ऑटोइम्यून डिसीज, एलर्जिक राइनाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा, साइकेट्रिक केसेस, क्योंकि मेरा साइकेट्रिक स्पेशलिटी है तो जीएडी, ओसीडी, डिप्रेशन, इसके भी केसेस, इवन विटिलिगो का केस, लाइकेन प्लैनस का केस मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ. इवन द हैमर्स थ्योरी, जो कंफ्लिक्ट बताया ना, पावरलेस कंफ्लिक्ट, दिस इज द हैमर, दिस इज कॉल्ड हैमर्स थ्योरी. You can go to the website Learning GNM, A to Z, Learning GNM. There you can get the conflict of every disease condition. ये अभी डायरेक्ट इसमें फायदा ये होता है कि हमको केस इजीली अंडरस्टैंड होता है और हमको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं पड़ती. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल. मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंफ्लिक्ट समझना. तो इससे हमको पेशेंट का कंसर्न या पेशेंट का प्रॉब्लम डेफिनेशन इजीली हो जाता है. राइट?